हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है डाटा हैंडलिंग। इंट्रोडक्शन, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, बार ग्राफ। नाउ इंट्रोडक्शन। The branch of mathematics which deals with the collection, organization, presentation, analysis and interpretation of numerical data is called statistic. It is very important branch of mathematics. In the previous class, we have learnt about some common terms used in statistics. Before moving further, let's recall them. First is data. A collection of numerical figures giving some particular type of information is called data. Next, raw data. Data obtained in the original form is called raw data. Array. Arranging the numerical figures of a data in ascending or descending order is called array. Next is range. The difference between the highest and the lowest observations in the given data is called its range. Range is equals to highest observation minus lowest observation. Next is tabulation of data. Arranging the data in the form of a table is called tabulation of data. Next, observation. Each numerical figure in the data is called an observation. Now, frequency of an observation. The number of times a particular observation occurs in the data is called its frequency. Now, measures of central tendency. A single numerical value that can represent the entire data is the best possible way is called the measures of central tendency. The commonly used measures of central tendency are: first is arithmetic mean, second is median, third is mode. Let us discuss each of these measures in detail. Now, first is arithmetic mean. The arithmetic mean in statistics is the same as average in arithmetic. In general, it is called mean. Mean of ungrouped data. The mean of n observations x1, x2, x3 up to xn is defined as mean is equals to sum of observations divided by number of observations. अगर हमें mean निकालना है तो हमारा फॉर्मूला है अनग्रुप डाटा का सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उनका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस अप टू xn डिवाइडेड बाय n, दैट इज द समेशन ऑफ xi अपॉन n, वेयर summation of xi is equals to x1 plus x2 plus x3 plus up to xn. Note that Greek letter summation read as sigma represents the sum. Now example करते हैं इससे related. Find the mean of the first 5 whole numbers. Solution करते हैं इसका. फर्स्ट 5 होल नंबर्स इज इक्वल्स टू, होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से, तो फर्स्ट 5 कौन से हुए? 0, 1, 2, 3, 4. सो सम ऑफ गिवन नंबर्स इज इक्वल्स टू 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 10. नंबर ऑफ गिवन नंबर्स इज इक्वल्स टू 5. सो मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर्स, दैट इज इक्वल्स टू 10 by 5 इज इक्वल्स टू 2. Hence, the mean of first 5 whole numbers is 2. Note that. For finding mean, it is not necessary to arrange the given data in ascending or descending order. Now, next example. The mean height of 5 children of a family is 157.4 centimeter. If 4 of them are 142 centimeter, 153 centimeter, 166 centimeter and 161 centimeter respectively, find the height of the 5th child. Solution करते हैं इसका. Let the height of 5th child be x centimeter. हम 5th child की जो height है उसे ले लेते हैं x centimeter. Then mean height is equals to sum of heights divided by number of children. Mean height कितनी given है हमें? 157
0.4 सेंटीमीटर। सम ऑफ हाइट्स, सारी हाइट्स का सम करो और जिसकी गिवन नहीं है उसकी जगह लिखेंगे हम x। तो हमने ये सारी हाइट्स का क्या किया, सम किया, दैट इज 142 प्लस 153 प्लस 166 प्लस 161 प्लस x डिवाइडेड बाय 5 सेंटीमीटर। 157.4 इज इक्वल्स टू जितने नंबर्स गिवन है इन सब का सम किया, दैट इज 622 प्लस x डिवाइडेड बाय 5, राइट। अब 5 अपोजिट साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो 622 प्लस x इज इक्वल्स टू 157.4 मल्टीप्लाई बाय 5। 622 प्लस x इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करने के बाद आया 787। x की वैल्यू निकालनी है तो 622 अपोजिट साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस। सो x इज इक्वल्स टू 165। हेंस द हाइट ऑफ द फिफ्थ चाइल्ड इज 165 सेंटीमीटर। नाउ मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। If the observations x1, x2, x3 up to xn have frequencies f1, f2, f3 up to fn respectively, then their mean is defined as mean is equals to f1 x1 plus f2 x2 plus f3 x3 plus up to fn xn divided by f1 plus f2 plus f3 plus up to fn, that is equals to summation of fi xi upon summation of fi। ये हमारा ग्रुप डाटे का, जहां पे हमें फ्रीक्वेंसीज गिवन है तो हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को उसके कंसर्न नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और उनका सम निकालेंगे। एग्जाम्पल से करते हैं इसको, एग्जाम्पल देखते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन ए क्लास। तो हमें टेबल गिवन है, मार्क्स गिवन है कितने, 20, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 2। मीन्स 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके 20 मार्क्स हैं। 22 मार्क्स हैं 5 स्टूडेंट्स के, 24 हैं 10 के, 26 है 7 के, 28 है 4 के और 30 है हमारे 2 के। तो ये जो मार्क्स हैं दैट इज द वैल्यू ऑफ x और ये इसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी, राइट। फाइंड द मीन मार्क्स, सॉल्यूशन करते हैं इसका। फॉर कैलकुलेटिंग द मीन मार्क्स वी प्रिपेयर द फॉलोइंग टेबल। हम एक टेबल प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पे मार्क्स को हमने लिया x, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज फ्रीक्वेंसी, तो हमें क्या निकालना है, fi xi, मीन्स फ्रीक्वेंसी को मार्क्स से x की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। 20 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 40, 22 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 110, 24 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल्स टू 240, 26 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल्स टू 182, 28 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 112, 30 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 60। नाउ फॉर्मूला क्या है हमारा, मीन मार्क्स इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ fi xi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल किया, दैट इज द समेशन ऑफ fi, और समेशन ऑफ fi xi जो हमने मल्टीप्लाई किया उनका सम किया। तो सम हमारा कितना है, 744 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी का सम कितना है, दैट इज 30। डिवाइड करने के बाद हमारा सॉल्यूशन क्या आया, 24.8। दैट मीन्स द मीन मार्क्स आर 24.8। मीन मार्क्स कितना है, 24.8। हेंस द मीन मार्क्स आर 24.8। नाउ ट्राई दीज। फर्स्ट इज फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग। हमें ऑब्जर्वेशन गिवन है, इनका सम डिवाइडेड बाय इनका नंबर, तो फॉर्मूला लगा के हम इनका क्या निकाल सकते हैं, मीन निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे, इसी तरह से एक्सरसाइज भी आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ next topic is median. After arranging the given data in ascending or descending order of magnitude, the value of the middlemost observation is called the median of the data. Now, median of ungrouped data. Follow the steps given below to find the median. Step 1. Arrange the data in ascending or descending order of magnitude. Step 2. Determine the total number of observations, say n. Now first is if n is odd, odd means 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, then median is equals to value of 1/2 under bracket n plus 1 nth observation. हमारा क्या बनेगा, median क्या होगा, value of 1/2 इंटू n प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, उतने नंबर पे जो ऑब्जर्वेशन है। सेकेंड, इफ n इज इवन, अगर n हमारा इवन नंबर है, देन मीडियन इज इक्वल्स टू 1/2 अंडर ब्रैकेट
वैल्यू ऑफ n बाई 2th ऑब्जर्वेशन मीन्स n का हाफ वो वाली ऑब्जर्वेशन प्लस वैल्यू ऑफ हाफ उससे नेक्स्ट वाली n बाई 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। एग्जाम्पल से करते हैं इसको। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। सॉल्यूशन करते हैं इसका। ऑन अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर वी हैव, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सबसे पहले हमारा क्या आएगा 3, देन 4, 5, 7, 8, 8, 9, 10, 12। हियर द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज 9 और 9 हमारा क्या है, ओड नंबर विच इज ओड। सो मीडियन इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ 1 बाई 2 अंडर ब्रैकेट n प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू ऑफ 1 बाई 2, n की वैल्यू कितनी है 9, 9 प्लस 1 इज 10th ऑब्जर्वेशन। तो 10 बाई 2 वैल्यू ऑफ 10 बाई 2th ऑब्जर्वेशन मीन्स 5th ऑब्जर्वेशन। जब हमने 2 से कैंसिल किया 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो कितना आया वैल्यू ऑफ 5th ऑब्जर्वेशन। अब जो हमने अरेंज किया है डाटा उसमें देखो 5th नंबर पे कौन सा है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, कितना आया हमारा 8। सो वैल्यू ऑफ 5th ऑब्जर्वेशन इज इक्वल्स टू 8, हेंस द मीडियन इज 8। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, the median of the observation 11, 12, 14, 18, x plus 2, 30, 35, 41 arranged in ascending order is 24. Find the value of x. ये ऑलरेडी किस में है, असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर रखा है और इसका मीडियन दे रखा है 24। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन करते हैं इसका। Here the total number of observation n is 8, that is even, which is even. So median is equals to 1 by 2 under bracket value of n by 2th observation plus value of n by 2th plus 1th observation. Median कितना given है हमें 24, that is equals to 1 upon 2 value of कितना है n की वैल्यू 8, 8 by 2th observation plus value of 8 by 2 plus 1th observation. Now value of 4th observation, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, वैल्यू ऑफ 4th ऑब्जर्वेशन प्लस वैल्यू ऑफ 4 प्लस 1 5th ऑब्जर्वेशन। 24 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 वैल्यू ऑफ 4th ऑब्जर्वेशन। 4th नंबर पे देखो क्या है 1 2 3 4 दैट इज 18 और 5th पे क्या है x प्लस 2 और ये हमारी क्या है 5th ऑब्जर्वेशन, राइट। अब हमें इसको सॉल्व करना है। 18 प्लस 2 इज 20, तो 24 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 अंडर ब्रैकेट 20 प्लस x। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, कैसे 1 बाई 2 क्या हो रहा है डिवाइड, इधर आके क्या हो गया मल्टीप्लाई, इज इक्वल्स टू में क्या रह गया 20 प्लस x। 24 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 48, दैट इज इक्वल्स टू 20 प्लस x। x की वैल्यू निकालना है, 20 अपोजिट साइड जाके माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 48 माइनस 20, दैट इज x की वैल्यू कितनी आ गई 28। Hence the value of x is 28. Now next is median of grouped data. Follow the given steps to find the median. Step 1. Arrange the data in ascending or descending order. Step 2. Determine the cumulative frequency of each observation. Step 3. Determine the total of frequency, say n. First, if n is odd, then median is equals to value of 1 by 2 under bracket n plus 1th observation. If n is even, then median is equals to 1 by 2 under bracket value of n by 2th observation plus value of n by 2 plus 1th observation. Example से करते हैं इसको। Find the median of the following data. Weight given है in kg और number of students, right? Now solution करते हैं। On arranging the terms in ascending order, we have, अभी हमने weight को क्या कर लिया ascending order में arrange कर लिया, तो weight in kg और number of students. Weight in kg 15 का weight कितने students का है 3, 17 is 5, 20 is 9, 22 is 4,
25 is 6 and 30 is 10. Now on preparing the cumulative frequency table we have, अब हम क्यूमुलेटिव का मतलब फ्रीक्वेंसीज को क्या करेंगे, ऐड करेंगे. जैसे यहाँ पे हमारा वेट असेंडिंग ऑर्डर में है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यही होती है हमारी फ्रीक्वेंसी. क्यूमुलेटिव का मतलब इनको प्लस करना. फर्स्ट क्या है 3, फर्स्ट क्या है 3, नेक्स्ट क्या है 5, तो 3 + 5 इज इक्वल्स टू 8, 8 प्लस नेक्स्ट क्या है 9, 8 + 9 इज इक्वल्स टू 17, नेक्स्ट है 4, 17 + 4 इज इक्वल्स टू 21, नेक्स्ट इज 6, 21 + 6 इज इक्वल्स टू 27, नेक्स्ट इज 10, 27 + 10 इज इक्वल्स टू 37. देखो ये भी हमारा क्या है, सम है, और जब इनका हमने सम किया दैट इज ऑल्सो 37. हियर n इज इक्वल्स टू 37 विच इज ओड. मीडियन इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ 1/2 अंडर ब्रैकेट n + 1th ऑब्जर्वेशन, दैट इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ 1/2 37 + 1th ऑब्जर्वेशन, दैट इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ 38/12th ऑब्जर्वेशन. इसको जब हमने कैंसिल किया 2 × 2, 2 9 18. वैल्यू ऑफ 19th ऑब्जर्वेशन, 19th ऑब्जर्वेशन कहाँ आएगा, देखो यहाँ तक तो 17 ऑब्जर्वेशन थे और यहाँ पे क्या है, तो 17 के बाद 18, 19, 20, 21 कहाँ आए, 21 वाली सीरीज में आए ना. तो यहाँ पे हमारा वैल्यू ऑफ 19th ऑब्जर्वेशन कितना आया, इस वाले वैल्यू को, x की वैल्यू देखो दैट इज 22. Hence the median is 22 kg. तो इस तरह से एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे. Now next topic is mode. The mode of a group of numbers is the number that occurs most frequently. That is the number whose frequency is maximum. Example से करते हैं इसको. Find the mode of the following data. 1, 2, 2, 4, 3, 2, 3, 3, 4, 3, 5. सॉल्यूशन करते हैं इसका. सबसे पहले हम डाटा को अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में. ऑन अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर वी हैव 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 5. क्लियरली सबसे ज्यादा बार कौन सा आ रहा है, 2 हमारा 3 टाइम्स है, लेकिन 3 हमारा 4 टाइम्स है, बाकी सब 4 2 टाइम्स है, 5 1 टाइम्स है, 1 भी 1 टाइम्स है. Clearly 3 occurs maximum number of times, hence mode is 3. Now relation among mean, median and mode. If we know the values of any two among mean, median and mode, then we can calculate the third one by using the given formula, that is mode is equals to 3 times median minus 2 times mean. ये हमारा relation between mean, median and mode. एग्जाम्पल से करते हैं. The following table shows the number of pairs of shoes of different sizes sold in a day by the owner of a shop. Size of shoes, number of pairs sold 6, 3, 7, 2, 8, 4, 9, 6, 10, 7. What is the model shoe size? Solution करते हैं इसका. Since the sale of size 10, जो 10 साइज का शूज है उसकी सेल सबसे ज्यादा है 7, राइट, इज मैक्सिमम, सो द मॉडल शू साइज इज 10. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल. फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द गिवन डाटा 3, 7, 8, 5, 6, 9, 6, 4, 6. सॉल्यूशन करते हैं. मीडियन और अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर वी हैव 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9. Here n is equals to 9 which is odd. Median is equals to value of 1/2 n plus 1th observation. Value of 1/2 n plus 1th observation, that is equals to value of 10/2th observation. 10/2 is 5th. Value of 5th observation is equals to, यहाँ पे देखो 5th वाली कौन सी है हमारी, 5th क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो हमारा मीडियन क्या है 6. वैल्यू ऑफ 5th ऑब्जर्वेशन इज इक्वल्स टू 6. मोड, सिंस 6 अकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इन द डाटा, तो मोड कितना आ गया हमारा 6 और मीडियन भी हमारा क्या है 6. नाउ मीन, लेट द मीन ऑफ द अबाउट डाटा बी x. हम लेट कर लेते हैं कि मीन क्या है x. अब फॉर्मूला है हमारे पास, मोड इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन. वैल्यू पुट की, मोड इज 6 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय मीडियन इज ऑल्सो 6.
माइनस 2x, 6 इज इक्वल टू 3 6 18 माइनस 2x, तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे। 2x इज इक्वल्स टू 2 को अपोजिट साइड लेके गए क्योंकि माइनस में है, 18 माइनस 6, 2x इज इक्वल्स टू 12, x की वैल्यू निकाली, 2 अपोजिट साइड जाके डिवाइड हुआ, 2 6 12, तो मीन कितना आया, दैट इज ऑल्सो 6, हेंस मीन इज इक्वल्स टू 6, मीडियन इज इक्वल्स टू 6 एंड मोड इज इक्वल्स टू 6। नाउ ट्राई दीज। फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डाटा। इसको पहले अरेंज करो और देखो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स कौन सा आया है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन भी आप खुद ट्राई करेंगे। तो इसी तरह से बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बार ग्राफ। A bar graph is a pictorial representation of the numerical data by a number of bars, rectangles of uniform width erected horizontally or vertically with equal spacing between them. To construct a bar graph, we follow the following steps. Step 1. On a graph paper, draw two mutually perpendicular lines OX and OY representing the x-axis and y-axis respectively. Step 2. Along the x-axis, take the variables and along the y-axis, take the values of the variables choosing a suitable scale. Step 3. Calculate the heights of the bars depending on the values of the variables. Step 4. Draw the bars of uniform width which make the graph eye-catching. Let us consider the given example to understand the concept of construction of bar graphs. Example से करते हैं इसको। The following table shows the number of mobile phone sets sold during the week. हमें क्या गिवन है, एक टेबल गिवन है जिसमें दे रखा है डेज ऑफ द वीक एंड नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स सेट सोल्ड। तो यहाँ पे डेज ऑफ द वीक है मंडे टू सैटरडे एंड नंबर ऑफ मोबाइल फोन सेट्स सोल्ड। मंडे को 50, ट्यूसडे 45, वेडनेसडे 30, थर्सडे 55, फ्राइडे 27, सैटरडे 60। ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन। सॉल्यूशन करते हैं इसका। हम क्या लेंगे, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये हमारा होता है एक्स एक्सिस और ये हमारा होता है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया, डेज लिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और यहाँ पे हमने नंबर ऑफ मोबाइल फोन सेट्स सोल्ड लिए। तो अकॉर्डिंगली हम इक्वल डिस्टेंस लेंगे। जैसे हमारा यहाँ पे हम देख रहे हैं सबसे कम कितना है 27, सबसे ज्यादा कितना है 60। तो 10 का डिफरेंस लिया, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। स्केल 1 बिग डिवीजन इज इक्वल टू 10 मोबाइल फोन सेट्स। तो यहाँ पे हमारा क्या है, मंडे को कितने सेल हुए, कितने सेट सेल हुए 50। तो हमारा मंडे वाला बार ग्राफ गया 50 तक। ट्यूसडे को 45, तो ये हमारा 45। वेडनेसडे को 30, तो ये हमारा 30 तक। थर्सडे को हमारे 55, ये 55 तक गया हमारा बार ग्राफ। फ्राइडे को 27, तो यहाँ पे हम इसके इक्वल देख लेंगे 27, और सैटरडे को हमारे कितने हैं 60। तो इस तरह से हमारे क्या है, सब में इक्वल डिस्टेंस है और ग्राफ की जो विड्थ है वो भी क्या है, इक्वल। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज डबल बार ग्राफ। Double bar graph is used to compare the information related to two different data. Example करते हैं इससे related. Following table shows the flavors of ice cream liked by children, boys and girls of a society. Flavor दे रखे हैं, number of boys and number of girls. Vanilla 4 boys 8 girls, chocolate 9 boys 12 girls, strawberry 3 boys 7 girls, mango 8 boys 9 girls, butterscotch 13 boys or 10 girls. Draw a double bar graph using appropriate scale to represent the above information. Solution करते हैं इसका। यहाँ पे भी हमने क्या किया, x एक्सिस और y एक्सिस। x एक्सिस पे हमने फ्लेवर्स लिए और y एक्सिस पे हमने क्या लिया, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अब यहाँ पे हमने डिनोट कर दिया, एक बिग डिवीजन हमारे 2 चिल्ड्रन के बराबर हैं। बॉयज के लिए हमने कैसा कलर लिया, येलो कलर लिया, और गर्ल्स के लिए हमने कैसा लिया, रेड कलर लिया, रेड और पिंकिश पिंकिश कलर लिया। तो वनीला देखो, वनीला बॉयज कितने हैं 4, तो वनीला का सेम स्केल पे रहेगा, बॉयज का है 4 और गर्ल्स का है 8, ये दोनों रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से हमारा चॉकलेट फ्लेवर कितना है 9 बॉयज एंड 12 गर्ल्स, स्ट्रॉबेरी
3 boys and 7 girls, मैंगो 8 boys and 9 गर्ल्स, और हमारा बटर स्कॉच 13 बॉयज एंड 10 गर्ल्स। तो ये क्या हमारा डबल बार ग्राफ, यहाँ पे हम कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पे हम दोनों को क्या कर सकते हैं, कंपेयर, कि गर्ल्स और बॉयज में कौन कौन सा फ्लेवर ज्यादा पसंद करता है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज रीडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ बार ग्राफ। इंटरप्रिटेशन ऑफ बार ग्राफ हेल्प्स टू ड्रॉ conclusions after reading it. For example, the following bar graph shows the average rainfall recorded in Jaipur from June to November of a certain year. हमें बार ग्राफ दे रखा है, ये मंथ्स है जून से लेकर नवंबर तक, और यहाँ पे रेनफॉल दे रखी है सेंटीमीटर में, और स्केल है एक बिग डिवीजन किसका है हमारा 5 सेंटीमीटर के इक्वल। लाइक observe the graph and answer the following questions. First is which month has the greatest rainfall? तो solution क्या है, अगस्त has the greatest rainfall। कैसे, देखो अगस्त का जो बार ग्राफ है वो सबसे ऊंचा है। Now which month has the least means कम, least rainfall, इसका solution है नवंबर। नवंबर has the least rainfall, कैसे पता चलेगा, देखो नवंबर का बार ग्राफ सबसे छोटा है। Now what is the average rainfall of the season? तो एवरेज कैसे निकालेंगे, द एवरेज रेनफॉल ऑफ द सीजन इज इक्वल्स टू सारे मंथ्स की रेंज को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय कितने मंथ्स हैं 6, तो 20 प्लस 30 प्लस 45 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज इक्वल्स टू 139/6 इज इक्वल्स टू 23.16 सेंटीमीटर। तो हमारी एवरेज रेनफॉल कितनी है 23.16 सेंटीमीटर। तो इस तरह से बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। आई होप आपको चैप्टर समझ आया, इसकी रिवीजन आप खुद कीजिए।